Can we start? It's 7 o'clock. Sairam Tanvi. Sairam, Akka. Start करूया नी. 7 झाली. Sairam Tanvi. Yeah, we can Sairam. start at 7 o'clock. We start. Okay, so I request everyone to keep their microphones off. Okay, Sairam. We'll start with 3 Omkar. My very humble pranam at the lotus feet of our beloved Bhagwan. And as we start, let us all contemplate on this bhajan and offer our pranams, and let us surrender ourselves at the divine feet. शीतल चरणं कोमल चरणं मञ्जुळ चरणं मम गुरु चरणं मृदुल चरणं अनुग्रह चरणं सद्गुरु चरणं सदा प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा पावन चरणं सदा भजामि पावन चरणं सदा भजामि. So I welcome all the participants, all the singers, and my Sairam to all of you. And for this bhajan sadhana, I would like to congratulate you first of all, because this is one of its kind we are having, especially in Goa. And I would say congratulate us more, because this is first of its kind online bhajan workshop. So I don't know how many of us have attended any online workshops like this. But yes, certainly Swami has blessed us with this opportunity, and he is thoroughly guiding us also. So it's being named as Bhajan Sadhana, our journey towards the Nada Brahma. So what is this basically? These are interactive sessions for knowing the essence of and proper guidelines for effective bhajan training. So we all know this is a bhajan training, but I would still like to split this up and give you a broader idea of what we are planning to do. So guidelines, like effective guidelines, proper guidelines, what are they? They are rules and regulations basically. So rules, any organization, they have their own set of rules and regulations. In our organization also, we have rules set up at Parthi, and we have to follow certain rules
even at our Samiti level, and so on. Now, essence. What is the essence? Essence is nothing but the goal. Now, what is the goal? What is the purpose? And what is the true nature of we doing this bhajan seva? So, for example, we do nothing without, we don't do anything just for the sake of doing. We do it for a purpose. Like we eat food because there is a purpose. We sleep because there is a purpose. So, in anything we do, it is justified. So, what is the purpose of all this? So, this is what we want to know. Now, Swami has introduced this seva as one of its first seva before he introduced anything else to us. When he taught Manasa Bhajare Guru Charanam. So that is the first bhajan which he, it's an example for all of us. So, and Swami has always, time to time, given a lot of importance for this seva. So what is the meaning, the broad meaning of bhajan sadhana, our journey towards the Nada Brahma? I would like to split it up. So first let us see what is bhajan sadhana, or else let's see what is sadhana. So usually we associate sadhana with something which is rigid or something which is strict. So let us see what the dictionary says. And it says sadhana means a disciplined and dedicated practice or learning. Discipline. What is discipline? Again, the guidelines. The guidelines, how and what, they are all included in the discipline part. And the essence, the dedication, it gives more clarity on the essence of sadhana. So, that is the meaning of it. So please keep in mind, discipline and dedicated practice or learning. Why is this sadhana? Why sadhana required? Okay, so now let's see what are the prerequisites of a singer. Now we all know who this is for. This training, entire training is for singers. So let us see what are the prerequisites for a singer. So obviously good voice. I'm speaking in English. Is it okay? I'll try my best to speak in Hindi also. It's okay? Okay, fine. Tanvi. Yeah. मी इंग्लिशली उलयतो म्हणून ते कोंकणी आणि हिंदी मिक्स केल्यार म्हाका चड बरी आसता. कित्याक जाणा तूं आमी केन्ना हें करता खूब जाणांक मातशें डिफिकल्ट जाता इंग्लिश म्हाका ते हाजेर घालता. हा ओके सायराम. Okay, सायराम. But you are doing very well. Very well you are explaining. Good. Keep it up. Very good. Thank you. Saira. Saira. Okay. So आम्ही कितें घेतिल्ले ते आम्ही आता नाव दिला. I'll speak in Konkani because नाव दिला साधना. So साधना कितें आसा, एक डिसिप्लिन आणि डेडिकेशन हे दोन साधनाचे पार्ट आसा. आणि डिसिप्लिन वी आर गोइंग टू कवर. आम्ही जे गायडलायन्स, रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा न्ही ते डिसिप्लिन पार्टान पडटा. आणि डेडिकेशन ते आमचे एसेन्स. आमी कित्याक भजन करता, ही सेवा आमी कित्याक करता, ताजेर आमकां एक क्लॅरिटी येवपाक, आमकां कळपा खातीर तो पार्ट आसा. सो ही साधना आमकां कित्याक जाय. सो पयलीं आमी पळोवया सिंगर. एक सिंगर म्हणून आमकां कितें कितें लागता, कितें कितें क्वॉलिटी लागता. एक म्हणजे बरो आवाज, बरो गळो जाय पडटा, मधुर आवाज, कानाक गोड लागता तसो. देन स्वरज्ञान, स्वराचे नॉलेज आसा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा सा रे ग म प द नि सा. सो ताजें एक थोडें ज्ञान आसचें. मागीर राग आनी ताल. राग आमचे जे ताल आसा थोडे, सो एक बेजीक नॉलेज कळ्ळें. सो तें लागता. मागीर अप्लायींग भाव, इमोशन्स जे आमी म्हणटा, भाव जे स्वामी खूब भर दिता. सो ते ताजी नॉलेज. मागीर नॉलेज न्ही, एक्चुली प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन ऑफ भाव. मागीर एक मायक आनी सावंड सिस्टम कसो वापरुपाचो, कशें तें दवरुपाचें,
सो ताजी एक प्रॅक्टिकल नॉलेज लागता. रियाज, डेली प्रॅक्टिस, दॅट इज ऑल्सो अ प्री रेक्विजिट ऑफ अ सिंगर. आणि मेंटेनिंग अ कंपोज्ड बॉडी पॉस्चर. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमचो एक बॉडी पॉस्चर आसता. जेन्ना एक पॉप स्टार स्टेजीर म्हणटा ताजी बॉडी पॉस्चर वेगळी आसता आनी तेच एक क्लासिकल बैठकीन कोण गाता ताजे बॉडी पॉस्चर वेगळे आसता. सो तशें. सो ह्या सिंगर कॅटेगरीन आमी सगळीं पडटा एक्सेप्ट फॉर द बाथरूम सिंगर, दॅट इज टोटली अ डिफरंट कॅटेगरी. बट in this category I would say amche playback singers, on stage perform, every one of us. Magir prerequisites of a bhajan singer आम्ही एक मातशें सेग्रिगेट करूया सिंगराच्या आता भजन सिंगर. सो पयलीं म्हणजे हातूंतले सगळे आमकां रिक्वायरमेंट्स लागता. जे कोण सिंगर्स आसा सो ताजे सगळे आमी ताजे रिक्वायरमेंट्स लागतात. पण एडिशनल रिक्वायरमेंट कितें आसा अशें स्वामीनूच सांगलां की दे शूड बी एबल टू क्रिएट स्पिरिच्युअल वायब्रेशन्स which can confer great joy on the singer as well as the listener. कळ्ळें. सो एक आनंद मेळपा खातीर सिंगराकूय मेळचो आनी जो आयकणाऱ्याक आसा ताकाय मेळचो अशें वायब्रेशन्स क्रिएट करूंक जाय एक भजन सिंगर जाय. आतां अशें आमी जेन्ना देवळांनी वता आनी थंय पळयता की एक बरे गाजिल्ले वायब्रेशन्स आसता. कित्याक थंय सगळे देवाचें नामस्मरण चलता आनी सगळें. सो मागीर आमचे अनूप जलोटा सारके कोण खूब लोक जे सुरेश वाडकरजी सारके खूब लोक भजन म्हणटा. सो दे ऑल्सो क्रिएट सच अ वायब्रेशन फॉर अस. सो नाव there is yet I've still segregated graduating to a Sai bhajan singer. So what must a Sai bhajan singer have? Okay, all the requirements, सगळे requirements जे एक सिंगराक आसता भजन सिंगराक आसता ते आसाच. पण इतले कितें डिफरंट आसा एक सिंगर, एक भजन सिंगर आनी एक साई भजन सिंगरा बद्दल कितें, वॉट इज द डिफरन्स? सो हेच आमी फायंड आउट करपाक ह्या प्रोसेसान भितर सरल्या. कळ्ळें. सो सर्टनली ही साधना एक प्रोसेस आसा. ही आमी सर्टनली हांगा वी आर नॉट हियर फॉर एनी नेम फेम अँड सर्टनली नॉट फॉर मनी. देन वॉट आर वी हियर फॉर? आमी हांगा कित्याक आसा? वॉट इज द पर्पज? कळ्ळें. हेच आमकां फायंड आउट करपाक आमकां ही साधना आसा. Sadhana is again a process. It's a transformational process, and it's a process to question us whether are we fit to be called an ideal bhajan singer. It is a process to remind us that as to what is needed to become an ideal Sai singer, Sai bhajan singer, and it is also a process to awaken us to become an ideal Sai bhajan singer. It is okay if you have not understood. I cannot translate this in Konkani, but पण सांगपाचें म्हणजे हें कितें आसा तें आमी सगळें हातून कवर अप जातलें. सो जेन्ना हांवें सांगलें हें ट्रान्सफॉर्मेटीव प्रोसेस आसा तेन्ना सगळ्यांचे हांगा खूब उमेद आसा, सगळ्यांक खूब उमेद आसा जॉयन जावपाचें आनी एक बऱ्या भशेन भजन म्हणपाचें. सो हांव इतलें सांगूंक सोदतां की एनीवन इज फ्री टू पार्टिसिपेट. हो प्रोसेस कसो आसा, हो ऑनलायन प्रोसेस आसा. आमकां फेस टू फेस ना आनी आमी हांगा फेस टू फेस खूब चॅलेंजीस आसा, लिमिटेशन्स आसा. आमी ते सगळे करूंक पावना जे आमी फेस टू फेस करतालीं. सो त्या खातीर ह्या प्रोग्रामान आमी सगळीं पार्टिसिपेट जावंक शकता. पण इंटरॅक्शन जे आसा, इंटरॅक्शन म्हणजे थोड्यांकूच मायक ऑन करूंक मेळटलो. ते इंटरॅक्शन आसा ते लिमिटेड लोकांकूच जातले. सो हातून तुमी कितें आसा, यू ऑल वील बी अ विटनेस टू दिस होल प्रोसेस. तुमी हे सगळे फूल वर्कशॉप हे अटेंड करूंक शकता, ट्रेनिंग साधना ट्रेनिंग अटेंड करूंक शकता. पण मे बी फॉर टायम बीइंग इंटरॅक्शनान भाग घेवंक शकचे ना, बट तुमी हाजो हे सगळे अनुभव घेवंक शकता.
कळ्ळें. सो हे एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. सो कोणाक कशे तरेन मोस्टली इट फॉर द प्रेझेंटली इट मोस्टली आमचे जे लीड सिंगर्स आसा ज्यांनी पब्लीक भजनाक भायर म्हणिल्ले आसा, आमच्या अखंड भजनाक जे लीड सिंगराच्या हातून जे आसा ग्रुपान, सो तांकां मोस्टली वी वील बी एकोमोडेटींग फॉर द इंटरॅक्शन. सो इतलेंच लक्षांत दवरा की जशे कृष्णाच्या हातान मुरली आसता, बासरी, कळ्ळें, बरी मधूर नोट्स तातूंतल्यान येता, बरो आवाज येता, पण ताज्या पयलीं ती एक प्रोसेसांतल्यान गेल्ली आसता आनी तिजी एक कितें म्हणटा जर्नी आसा, एक कितें म्हणटा पेन आनी ब्लिस, आनंदाचोय ताका अनुभव जाता आनी पयलीं ताज्या पयलीं दुख्खाचोय अनुभव जाता. सो फॉर एनी प्रोसेस this everything is there. Now the next part I will go to the journey part. Now journey, why do I call it a journey and not a workshop? Earlier आम्ही ते भजन workshop म्हणून केले, पण why don't we call it a workshop? Because म्हाका दिसता workshop एक असो जागो आसा खंय कितें वस्तू येता आनी वता, म्हणजे थंय येता रिपेर जावपाक आनी मागीर वता. पण जर्नी एक अशें हें आसा शब्द दॅट म्हणजे जर्नी एक लिमिटेड पिरियडाक नासता, एक कितें म्हणटा कोंकणीन लिमिटेड, आय थिंक दीस वर्ड एवरी वन वील नो, बट लिमिटेड टायम फ्रेमानूच आसता, म्हणजे एक टायम फ्रेम नासता. सॉरी, प्रवास, जर्नी इज अ प्रवास, पण ताका एक टायम फ्रेम लागना. प्रवास तो निरंतर आसता. ओके, निरंतर, थँक्यू स्वामी. सो निरंतर प्रवास म्हणटा आमी ताका. सो जर्नी म्हणजे तशें आमी 3 म्हयन्याचे दवरला म्हणून ते 3 म्हयन्याचेर सपना. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. मागीरूय आमचो तो प्रवास चालूच उरता. सो आमी जेन्ना म्हणटा हो प्रवास तेन्ना कशें आसता, थोडी जाण प्रवास म्हणटकच तो सुरूच आसता, अखंड सुरू आसता. सो कोण एक एकदां आमच्या फुडें पावता, कोण आमच्या फाटींतल्यान कॅचअप करपाक येता. सो दॅट डजंट मॅटर आमी खंय आसा, कोण खंय आसा, डजंट मॅटर, बिकॉज वी ऑल आर ऑन द सेम पाथ. कळ्ळें. सो आतां कितें आसा, हांव तुमकां हें चड बरें कळपा खातीर हांवें एक ल्हानशें गायडेड विज्युअलायझेशन घेवंक सोदता. गायडेड विज्युअलायझेशन इज नॉट मेडिटेशन, बट इट्स जस्ट यू विज्युअलायज. आतां कशें आसा, कोरोनाच्या दिसांनी आमचे सगळे बंदी आयिल्ली आसा, म्हणजे आमकां ट्रॅवल करूंक मेळना कांय ना, बट रिमेंबर यू कॅन ऑलवेज डू इट थ्रू युअर मायंड. You can travel anywhere, and this visualization is I'm going to take you to on a journey from Goa to Mumbai. Right? So कितें करपाचें, तुमी सगळीं जाण दोळे बंद करा आनी हांव जशें जशें सांगता तशें तशें तुमी विज्युअलायज करा, म्हणजे इमॅजिन करा. ओके. सो जशें आमी गोंयच्यान मुंबय वता पळय तेन्ना आमकां खूब जागे मेळटा मदीं मदीं, सावंतवाडी, आंबोली, कोल्हापूर, सातारा, पुना एंड सो ऑन. सो डजंट मॅटर वेर यू आर, जस्ट दॅट यू आर विलिंग, युअर विलिंगनेस इज इम्पॉर्टंट. एनीवेज तुमच्या खातीर हांवें तें मातशें हिंदीन बरयलां, मातशें सांबाळून घेया. ओके. सो before that, I just pray to Swami to please guide us through this visualization. So we'll start. Please close your eyes. अपने आंखें बंद कीजिए और जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ उसको इमेजिन कीजिए. हम सब गोवा से मुंबई जाने के लिए सज्ज हैं. गाड़ी की पेट्रोल की टंकी भर चुकी है. टायर को भी चेक किया है. प्रवास में लगने वाला सामान
जैसे कि कुछ खाना और पानी हमने गाड़ी में रखवाया है। हम गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। अपना मोबाइल फोन पॉकेट से निकालकर एक व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे कई भाइयों और बहनों ने अपने प्रवास का आरंभ किया है और वे अलग अलग स्थानों पर पहुंच भी चुके हैं। मोबाइल नीचे रखकर हम सीट बेल्ट लगाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके हम अपना प्रवास शुरू करते हैं। धीरे धीरे गाड़ी की तेजी स्पीड बढ़ने लगती है। हम प्रवास का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर हरियाली देख रहे हैं। देखते ही देखते हम बहुत से किलोमीटर पार कर लेते हैं। अब हाईवे पर हम गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाकर स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी हमारी नजर साइडवे पे पार्क किए हुए गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वह कोई इशारे कर रहा है। हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो रुके और दूसरा आगे जाएं। जो रुक जाते हैं वे जान लेते हैं कि वह इशारा हमारी भलाई के लिए ही है। हो सकता है हमारी गाड़ी का टायर फ्लैट हुआ है या खिड़की खुली छोड़ी है या पेट्रोल लीक हो रहा है। हम साइड में गाड़ी रुकवाते हैं। जानकारी देने के लिए उस व्यक्ति को हृदय से साईं राम कहते हैं। सब ठीक ठाक करके हम फिर से निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाकर साइडवे से एक व्यक्ति अचानक से हाथ फैलाकर हमारी गाड़ी के सामने खड़ा रहता है। हम घबराकर गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं। यह व्यक्ति भी हमारी भलाई के लिए कुछ कहना चाहता है। शायद हमने लिया हुआ रास्ता ही गलत हो या हम उस रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं जिस पे आगे एक डेड एंड हो या कोई खतरा हो। वजह जानकर हम भगवान का स्मरण करते हैं और उस व्यक्ति को हृदय से साईं राम कहते हैं और फिर से प्रवास शुरू होता है। अब तक हम गाड़ी चला रहे थे, पर अब हमें सोचना है कि हम वो व्यक्ति है जो साइडवे पर खड़ा था। हमारी गाड़ी साइडवे पर रुकी हुई है क्योंकि उसमें कुछ समस्या आई है, कोई प्रॉब्लम है। हम बोनेट खोल के उस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। हमारी विचलित हालत देखकर रुक जाती है। उसमें से व्यक्ति बहुत ही आदर और प्रेम से हमें कुछ फल और पानी देता है, हमारी मदद भी करता है। हमें बहुत आनंद मिलता है और हम उसे हृदय से साईं राम कहते हैं। अब दोनों ही अपना अपना प्रवास फिर से आरंभ करते हैं। साईं राम, आंखें खोलिए। एंड वो प्रवास उधर ही नहीं रुकता है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, मतलब मुंबई पहुंच जाते हैं, पर फिर भी मुंबई पहुंचने के बाद भी उनको कठिनाइयों के का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैफिक से जाना, फाइंडिंग द करेक्ट एड्रेस पे पहुंचना, वो सब रहता है। सो आपको आप में से किसी को इस विजुअलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन चाहिए? प्लीज स्विच ऑन योर माइक्स एंड लेट मी नो। थैंक यू समीक्षा। एक्सप्लेनेशन चाहिए और या पता चला कि कौन क्या है और कैसा है? इट्स ओके। तो बोलना यही है कि हम सब जो है, या हम गाडी चला रहे हैं या वो साइडवे पे खडे हैं, आम्ही सगळे एकाच ट्रॅकार असा, एकाच पाकार असा, एकाच जर्नीन असा, एक ही प्रवास में हम सब लोग जा रहे हैं। तो हाईवे कैसा है? सिंगल एंट्री रोड है, वन वे रोड है। तो वैसे ही हम लोग सब प्रवास कर रहे हैं। तो अब सब अपने कौन किधर है, कौन कौन किसका, ये जर्नी पर हम लोग कहाँ खड़े हैं, वो खुद को विजुअलाइज करना है। हम लोग शायद हम लोग ऐसे घर के नीचे ही है, लेकिन गाड़ी में बैठे हैं। दैट इज ऑल्सो ओके। योर विलिंगनेस इज वॉट स्वामी सीज। वेयर यू हैव रीच्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसी में whoever you may be, wherever you may stand in your journey, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबको, that receive this training with an open mind and an even larger heart। क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मेरी लाइफ से। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द टेल ऑफ महाभारत। महाभारत से मैं बहुत प्रेरित होती हूँ और मैंने बहुत पढ़ा है महाभारत के बारे में, बहुत बुक्स पढ़े हैं और स्टोरी वही है, हर एक बुक में वही है। कभी कभार एक बुक ही मैंने 4 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ईच टाइम आई रीड इट आई परसीव समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाई। मे बी वो कथा ही ऐसी है कि हर बार जितना भी पढ़ो फिर भी उसमें और एक कुछ नया अनुभव आता है, एक नया व्हाट यू से न्यू अंडरस्टैंडिंग, अ न्यू टीचिंग, न्यू हैप्पीनेस, एक नया आनंद मिलता है हर एक बार जब हम लोग वो पढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर ये ट्रेनिंग में आपको लगता है कि ये टीचिंग वही है या बहुत बेसिक है या यू नो व्हाटएवर, फिर भी उसमें से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपका एक नया दृष्टिकोण बनेगा। और इसलिए मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप कोई भी हो, आप सिंगर मीनिंग लीड सिंगर हो या कोरस सिंगर हो या भजन कोऑर्डिनेटर ही हो, whoever you may be, we all are on the same track, on the same journey। So let us receive this training। जो कुछ हमको यहाँ सीखने को मिलता है वो हम ओपन माइंड और लार्जर हार्ट, आई वुड से, बड़े मन से हम वो सब ग्रास्प करें। तो ये हो गया हमारी जर्नी के बारे में। तीसरा है नाद ब्रह्म, जो आर जर्नी टुवर्ड्स नाद ब्रह्म। अभी नाद ब्रह्म के बारे में मैं भी आपसे कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ टू डिस्कवर व्हाट इज नाद ब्रह्म। सो उसमें हम सबको अपना अपना डिस्कवरी करना है। तो उसमें उसके ऊपर मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, वो इतना वास्ट है। लेकिन हम लोग स्वामी से प्रार्थना करेंगे कि हम उस नाद ब्रह्म से हम उस तक हम पहुंचे। एंड दिस इज one of the opportunities which he has blessed us with। तो अगर आपको सब
द फुल विजुअलाइजेशन अगर आपको समझ में आया है, तो ऐसे ही सच आई वुड लाइक टू introduce you like one such person who is waiting on the sideway just for us to slow down a bit and notice the signs. And she is here with us today, and she is none other than Sister Uma Bolangdi. Uma Didi, I welcome you. Sai Ram. So I'll just give you a brief introduction of Didi. Sai Ram Didi. So she, yeah. Sai Ram. So being born in a musical Sai family and a bhajan singer right Sai from Ram. the age of 5, she has performed several times in the divine presence as a Bal Vikas child, youth, and now as a bhajan singer from Mumbai. Presently being the state bhajan coordinator for Mumbai Metro, she has recorded several Sai bhajan albums and also rendered devotional musical programs. She had the opportunity to share the stage with eminent personalities like Suresh Wadkar, Padmaja Fenali, Richa Sharma, and the list goes on, as a representative of Sri Satya Sai organization. She conducts auditions and bhajan training sessions in Mumbai and certain metros for the youth, Bal Vikas children, and so on. And more than this introduction, I would say I was really touched by one message of hers. I apologize to you, Didi, because I'm sharing your personal message, which said, introduction doesn't matter at all. Our being members of one Sai family is all that matters. I feel this is the most humble introduction I would like to give to all my fellow brothers and sisters. So I would request Uma Didi to kindly say a few words. Over to you, Uma Didi. Yeah. A warm Sai Ram to everyone. सबको मेरा प्यार भरा साई राम. सबसे पहले तो I would like to really I mean appreciate Tanvi. तन्वी आपने बहुत 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 अच्छी तरह से बोला, इंट्रोडक्शन दिया है. आई थिंक ये सब देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी तो जरूरत नहीं है, सबको सब आ रहा है. You know, I don't have to tell you anything. And of course, your visualization and the way you spoke was really good and very nice. Even your singing was very good. Which all inspired by Swami Didi. Yes, yes, definitely. So that's one thing. And the second thing is that after, I mean, it's a pleasure. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने फिर मुझे याद किया. मैंने जब few weeks पहले आपको ऑनलाइन भजन्स पे गाइडलाइंस दिया था, जो मेरे लिए भी नया है, हम सबके लिए नया है. बट अभी बॉम्बे में हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं. आप लोग अभी few months, I think 1 or 2 months से शुरू किए हैं. The good part about it is, what I liked is that जो भी मैंने suggestions दिए थे अपनी तरफ से, I saw that honestly you were working on it to implement, not because I have given them, but because your intention was to, improve your bhajans and make it sound good. So ये जो intention है कि हमको और अच्छा करना है और अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है और भजन को अच्छे, इवन इफ हम पर्सनली मिल नहीं सकते, जो हमारा पहले से एक मेंटल सेटअप है कि हमको रूम में बैठना है, भजन करना है सबके साथ, ये ऑनलाइन में तो सभी गड़बड़ है. You just cannot relate to it. But in spite of all this, if we are able to get together and do something constructive and quality wise, is something which you people have been working towards, and which is really बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप लोग implement कर रहे हो जो थोड़ा बहुत suggestions मैंने दिए थे. And that was one thing. और जैसे तन्वी ने बोला, अब मुझे जो बोलना था वो सब तो तन्वी बोल ही दिया, she has told everything. So anyway, like she said, this is not a training session, this is a journey. It's a journey
of you and me together. You know, even if I am telling you something, it is out of my experiences of so many years. Although, like she said, कि I've started singing from a very young age. So, उसकी वजह से I've been in the organization and I've been a part of the organization for a real long time because I got in early. तो उस वजह से I could sort of, I grew up in the organization and I could sort of see the whole bhajan movement from quite a few years. बहुत साल, मतलब मेरे को, मुझे भी हिंदी is not so convenient, but मैं कोशिश कर रही हूँ. So जैसे सालों से, बहुत सालों से होने के वजह से यंग एज पे इसमें आई, तो बहुत एडवांटेज ये मिला. स्वामी ने ये एडवांटेज दिया कि ये पूरा जो भजन मूवमेंट है मुंबई में, एंड ऑफ कोर्स मैं मुंबई की बात करूंगी, तो पूरा जो आई कुड एक्सपीरियंस एंड बी अ पार्ट ऑफ इट राइट फ्रॉम द टाइम, जब से बहुत साल पहले जब पांडुरंग दीक्षित दादा जो थे, तब से मतलब आई हैव सीन, मैं देख रही हूँ कि कैसे भजन का ट्रेनिंग होता है, कैसे रूल्स फॉलो होते हैं, कैसे. तो मैं इसमें सॉर्ट ऑफ आई ग्रू अप, इसी में बड़ी हुई हूँ. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग सिटिंग हियर एंड गिविंग यू गाइडलाइंस. वैसे स्वामी ने भजन गाइडलाइंस तो सबको दिए हैं, सबको पता है, वी ऑल नो एवरीथिंग. इट्स ओनली अबाउट अप्लाइंग सर्टेन, वो चीज को अप्लाई करना इज what is necessary. So whatever I have experienced in these few years, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, and it will be an interactive thing के कैसे in that process मेरा भी रिविजन हो जाएगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. ओके, तो भजन के बारे में अभी इन्होंने तो सभी बोल ही दिया है. Why bhajan is a sadhana and everything. I would only like to add a few things. That first is, I was to start with the bhajan, but anyway, I think I've missed the point. Anyway, so I would like to share one incident. के एक बार स्वामी कोडाई में स्टूडेंट्स के सामने बाहर आए और सामने सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे. तो उन्होंने, आपने सुनी होगी, इंसिडेंट सुना होगा, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग इट टू यू टू कनेक्ट इट टू माय टॉक. सो वन स्वामी, एक बार स्वामी बाहर आए एंड स्टूडेंट्स सब बैठे थे, तो उन्होंने आके स्टूडेंट्स के सामने पूछने लगे कि आई एम ऑन ऑक्शन, मैं नीलाव पे हूँ. लीलाव, ऑक्शन इज लीलाव. तो आई एम ऑन सेल, आई एम ऑन ऑक्शन. तो मुझे कौन खरीदेगा? who will buy me, sort of, you know, and how much will you pay for me? तो everybody was like stunned, they were like staring के अब क्या बोलेंगे अगर स्वामी बोलते हैं कि मुझे खरीदो, तो what can you say? तो सब स्टूडेंट्स चुप बैठे थे. फिर स्वामी और आगे जाके हर एक को पूछने लगे, will you buy me, how much will you pay for me, how much will you pay for me, you know, तो कितना दोगे, कितने दाम में मुझे खरीदोगे? तो सब स्टूडेंट्स एकदम चुप, कुछ बोले ही नहीं, ऐसे ही देख रहे थे. एंड देन ये स्टूडेंट्स के पीछे जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस अंजनी देवी है, अंजनी देवी, वो बैठे थे. शी वाज सिटिंग देयर एंड शी रेज्ड हर हैंड एंड शी स्टूड अप एंड खड़े होके उन्होंने हाथ जोड़ के स्वामी से बोला कि स्वामी, आई एम रेडी, मैं आपको खरीदने को तैयार हूँ. तो सबको एकदम ऐसे शॉक लगा कि ऐसे कैसे, you know, how can somebody say that? And Swami also looked at her and smiled. So Swami उनके पास जाके उनको स्माइल किया और उनको पूछा कितने दाम में मुझे खरीदोगे, and how much will you pay for me, कितना मेरे लिए ये दोगे? So she said, whatever you say, आप जो बोलेंगे मैं वो दाम दूंगी, I will give you that. So Swami laughed and he said, I do not want anything, I just want your लविंग हार्ट. मुझे प्यार से अपना लविंग हार्ट दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बदले में मुझे ले लो. यू गिव योर लविंग हार्ट टू हिम एंड यू कैन बाय हिम. सो लव इन आवर हार्ट वी ऑल हैव, इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव. सबके दिल में लव रहता है
and we have love for Swami also. That's also there. That is why we are all here. Finally, we are all a part of the Sai family because we love him and we want to follow what his teachings are, and we want to reach him finally in his what do you call, subtle form, not in the body form. In the body form हम बहुत बार enjoy कर चुके हैं उनकी company, और अब हमको वो सब relive करना है और उसको internally feel करना है. That now is the time to do that. Although the experiences, physical experiences of Swami are something which will always remain in our memory, but उसको हम कैसे internalize करने के लिए use करते हैं, visualize, जैसे उन्होंने visualization दिखाया हमें, तो ऐसे हर बार जब हम भजन गाएंगे तो उसको visualize करने का, जब हम visualize करेंगे तो उसमें बहुत बहुत potency आती है और power आता है. So that all we will try to do when we do the workshop, and I won't call it a workshop again, it's a journey again. Okay, so that's what I wanted to tell you. So we have love to share with him, but this love is best expressed through bhajans, because bhajan, like she said, is basically music. What is music? What is Nada Brahma? We are talking of Nada Brahma. Nada is the first sound, the energy with which the Lord created the entire universe. Okay, उन्होंने कहा ओम और पूरी सृष्टि तैयार हो गई. तो वो जो साउंड एनर्जी है उसमें बहुत बहुत ताकत है, बहुत पावर है. इसीलिए तो few years back music was called art, but now it's no more called an art. अब उसको art नहीं बोलते, उसको बोलते हैं science. Why is music a science? Because क्यों उसको अभी science ने recognize किया है कि इसकी वजह से music ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को, हर एक creation को affect करती है. It affects everybody and it can move anybody. तो उसमें it can relax people. तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो म्यूजिक में है, जो और किसी चीज में नहीं है, that is because it is the Nada Brahma, the first sound. तो उस साउंड के वजह से वो साउंड हमारे अंदर भी है. It is everywhere in the universe. It's in every plant, every stone, every animal. That is why they respond, and that is the effect of music. That is why Swami has recognized this, and right from the beginning, not only when he declared मानस भजरे से, तो उन्होंने अपना पहला मैसेज तो दे ही दिया था म्यूजिक में. पहला मैसेज उन्होंने भजन में दे दिया, so that लोगों को ध्यान में भी रहे. जब गाना होता है तो इमीडिएटली, इवन स्कूल में जब हम छोटे थे तो स्कूल में टीचर पोएट्री सिखाती थी तो उसमें ट्यून लगा के सिखाती थी, यू नो, स्कूल पोएम्स. अगर ऐसे ही बोलो तो, और अभी हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड का मुझे अभी तक गाना याद है. Why? Because she sang. The teacher sang and taught. कुछ तो देवाचे घर भाई उंचावरी असं कुछ गाना था. इवल्या इवल्या अशा टिकल्या टिकल्यांचे देवाचे घर बाई उंचावरी, ऐक मजा तर ऐक खरी. दिस इज अ पोएम वी लर्नड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, बट अभी भी मुझे आती है. पूरा पोएम आता है क्योंकि उसने गाने में सिखाया था. तो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक. तो दैट इज हाउ स्वामी रिकॉग्नाइज्ड इट. एंड तभी उन्होंने जब छोटे थे पंडरी भजन मंडली से उन्होंने वो म्यूजिक का की जर्नी शुरू की, टू शो पीपल द पावर ऑफ म्यूजिक. और अपने ग्रुप के साथ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भजन करते थे, और पूरे नगर संकीर्तन का कंसेप्ट जो पूरे विलेज में घूम के भगवान का नाम गाना एंड प्योरिफाइंग इट. विलेजर्स को पहले लगा इट्स जस्ट वन गेम, इट्स अ स्पिरिचुअल गेम विच दे आर प्लेइंग, बट जिस टाइम पे वहां पे कोलेरा आया, द all the villages around had cholera, but in Puttaparthi there was no cholera, because it is this Pandari bhajan. They realized कि ये भजन के vibrations की वजह से पुट्टापर्थी विलेज में कोलेरा की एंट्री नहीं हुई. जब लोग आसपास के विलेजर्स ने
ये रियलाइज किया तो दे स्टार्टेड टेकिंग दिस ग्रुप देयर, अपने विलेज में जाके वो वहाँ के आप लोग यहाँ आके हमारे यहाँ भजन करो. So that is how Swami has been talking about the importance of bhajan for all this time. Now bhajan music, okay, fine, but music, importance of music, we all know. We also know how it impacts plants, animals, everything. But what is the speciality of Sai bhajans? म्यूजिक तो हम सब सीखते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि भजन सिंगर्स को तो म्यूजिक, बेसिक म्यूजिक आता है, and you need to have a good voice. All those things come later, but music is something which we all love to hear. अगर हम गा नहीं सकते तो सुनने के तो सब लोग, इवन यू यंगस्टर्स को आप देखोगे तो वो अपना वो हेडफोन में सुनते रहते हैं. म्यूजिक इज समथिंग विच इंस्पायर्स यू, एंड even if you look at all other organizations, कोई भी spiritual organization हो, भजन तो होता ही है सब जगह पे. बट ये जो इम्पोर्टेंस स्वामी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भजन को दिया है, और हर एक चीज में उन्होंने इतना माइन्यूटली उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि ये ऐसे करो, ये ऐसे मत करो, ये ऐसे गाओ, ये ऐसे मत गाओ. सो it shows that Swami gives so much of importance to bhajan, and he does not consider, वो ऐसे नहीं समझते कि भजन एक a good way, अच्छे तरीके से टाइम बिताने का साधन है या भगवान का नाम लेने का साधन है. इट इज अ साधना, जैसे उसने बोला, इट इज अ डिसिप्लिन. और जब हम उस तरह से भजन को ट्रीट करेंगे तभी उसका हमको जैसे एक साधना करने से, जैसे अगर हम कोई भी साधना हो, जैसे समझो मेडिटेशन है, इफ यू वांट टू टेक अप, आपको मेडिटेशन करना है तो इट्स नॉट दैट कि हम ऐसे ही एक दिन बैठ के मेडिटेशन करेंगे और कुछ होगा. हम क्या करेंगे, उसका पूरा स्टडी करेंगे, हम रिसर्च करेंगे कि क्या कैसे करते हैं मेडिटेशन. वी विल स्टडी अबाउट द चक्रास, वी विल स्टडी अबाउट कैसे विजुअलाइजेशन करना चाहिए. स्लोली 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 वी विल प्रोग्रेस. उसी तरह से भजन में भी बहुत जरूरी है कि उसको हम साधना की तरह ले. इट इज अ डिसिप्लिन कि एक तरह से जैसे प्रैक्टिस है, ये है. वी विल गो थ्रू ऑल द डिफरेंट थिंग्स एज द डे इन डिफरेंट what you call sessions. But today all I wanted to stress is that bhajans, Swami has given lot of importance. Bhajan centers are our face of the organization. सबसे पहले भजन सेंटर स्टार्ट हुए और जहाँ पे लोग मिलते हैं, एंड आप अगर पूछेंगे तो 90% जो साई डिवोटीज हैं वो भजन के थ्रू आए होंगे, बिकॉज भजन इज लाइक अ मैग्नेट. वहां पे लोग आते हैं बाहर से, जब वो भजन सुनते हैं, इट इज सो ब्यूटिफुल, एंड इट बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन ऑल्सो सिंग अलॉन्ग. ऐसा नहीं है कि जैसे तन्वी ने बोला, अनूप जलोटा जी गाते हैं, he creates lot of vibrations, but it is like a program. आप बैठ के सुन रहे हो, somebody sharing something, if you can stop presenting, somebody is presenting something on the screen. Okay, so जैसे हम सोलो भजन सुनते हैं, उसमें सिंगर बैठ के अकेले गा रहा है एंड हमको आनंद मिल रहा है, बट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट. बट सत्य साई भजन का की यही स्पेशलिटी है कि इसमें नाम संकीर्तन, इट इज कॉल्ड नाम संकीर्तन. नामस्मरण भी होता है और संकीर्तन, कीर्तन होता है. जैसे दी सोलो भजन आर कॉल्ड कीर्तनस. तो जैसे कीर्तन में देयर इज सिंगिंग, देयर इज स्टाइल, देयर इज मॉड्यूलेशंस. ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही हरे रामा हरे कृष्णा नहीं गा रहे. हम आप देखोगे तो साई भजन्स के अलग अलग ट्यून्स हैं, अलग ताल में बिठाए हैं. ऑल दिस इन जस्ट 4 or 5 lines. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी भजन्स की किसी ने बैठ के सोचा कि मैं आज मैं लिख लूं, एक आज मूड आया पोएट्री करने का तो मैं बना रहा हूं. ऐसा नहीं. ईच भजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ समबडीज इमोशंस. हमको पता भी नहीं होगा किसने किया है, किसने वो कंपोज किया है भजन, बट हम जैसे हमारे संत कंपोज करते थे,
you know, हमारे तुकाराम महाराज, Jnaneshwar, all these saints, Zanabai, out of devotion, it's an outpour. Devotion का expression है ये भजन. हमारे हर भजन का is an expression of devotion by some devotee, जो हमको पता भी नहीं है, इतने हजारों भजन है, हमको पता भी नहीं है उसकी story. तो this is the importance which Sai bhajans have, and main part is the group singing. तो कितना भी आप म्यूजिक में एक्सपर्ट हो, अच्छे गाओ, अच्छे वेरिएशंस दो, लेकिन अगर आपको अच्छा कोरस नहीं मिलता है, and if the chorus cannot sing with you, then the bhajan, Sai bhajan becomes a flop. तो जितना कोरस को इम्पोर्टेंस है, जितना लीड को इम्पोर्टेंस है, उतना ही कोरस को इम्पोर्टेंस है. और ये सब प्रोसीजर एक 3 मिनट के अंदर हो जाता है, विच इज अभी एज साई डिवोटीज आपको लगे, हमको लगेगा कि ठीक है, आई मीन दैट इज हाउ, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट, यू नो, फॉर ऑल दीज इयर्स. बट आई वुड लाइक टू टेल यू के जब स्वामी आते थे बॉम्बे में मेनी इयर्स बैक, जब स्वामी आते थे हर साल में 2-3 बार आते थे, तो धर्मक्षेत्र में स्वामी स्टेज पे बैठते थे और जस्ट बिलो द स्टेज भजन ग्रुप होता था. तो वी वुड बी सिटिंग इन द भजन ग्रुप, और हमारे बाजू में कौन बैठता था? पंडित भीमसेन जोशी, पद्मजा फेनानी, 1-2 बार तो लता आशा भोसले. हाँ, आप यू नेम देम एंड ये सब बैठे हैं उधर बाजू. who's that lady? हाई पिच, परवीन सुल्ताना तो हर बार होती थी. तो ये सब हमारे बाजू में बैठते थे. एंड कैन यू इमेजिन, इतने बड़े सिंगर्स ये बाजू में बैठे हैं, और इनके सामने स्वामी हैज गिवन अस एज ऑर्डिनरी पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग, and they are following us, you know. This is not something, I'm not boasting about it. It's all about Swami's importance for this pattern of singing and bhajans. And आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों को इतने बड़े सिंगर्स होने के बावजूद साई भजन नहीं जमता था. तो बहुत बार ट्राई किया, we tried to make them sing, but they would be so you know surprised कि कैसे गाते हो यार तुम लोग. और राग इधर एक राग में गाया, दूसरे राग में नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट्स इन अ डिफरेंट राग, दूसरे पर्सन ने दूसरे पिच में ही गा लिया. We all sing in different pitches, different ragas, different tunes, different ताल. Whereas if you see classical में अगर आप देखोगे तो एक सुर में गाते हैं, and एक राग 10 मिनट तक गा के you know ऐसे इफेक्ट होता है म्यूजिक का. I'm sorry, we can't hear you properly. There is some disturbance. You can't hear me? There is disturbance. Oh no, I can't help it. That is what. Hello, can you hear me? Hello? I can hear you. I can hear you, Didi. Okay, so मुझे क्या बोलना था? No, we can hear you. हाँ, you can hear ना? हाँ, okay. All I wanted to say, मुझे यही बोलना था कि स्वामी ने साई भजन को इतना इम्पोर्टेंस दिया है. क्यों? Because of this lead and chorus, जहाँ सब साथ में मिलके गा सकते हैं. And मैं बोल रही थी कि स्वामी के 65th बर्थडे था, एंड बॉम्बे में they were doing एक डबल कैसेट बना रहे थे, और सब उसमें हमको सेलिब्रिटीज का तो अट्रैक्शन होता ही है, सेलिब्रिटीज के साथ करना था. तो उन्होंने भीमसेन जोशी के लिए ये बुक किया था रिकॉर्डिंग रूम, एंड आई वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम. सो उसके पहले ही वाज टू उनको रिकॉर्ड करके दिया था गाना जय पांडुरंग प्रभु विठला भैरवी. तो जब वो आए, and it was like almost like Swami is coming, we were all like wow, and we were standing there and you know कि कैसे होगा, क्या होगा and all. And जब वो आए तो you won't believe it, एक जय पांडुरंग प्रभु विठला गाने के लिए उन्होंने आधा घंटा भैरवी का आलाप किया, because he just can't start it like that.
I'm not finding fault with them. I'm not trying to say anything. They are really, really great people. All I want to say is that these Sai bhajans, which we think कि हम तो ऐसे ही गा लेते हैं, it's not like that. There is lot of prapti to sing this, and उसमें बहुत blessings भी है स्वामी के कि हम we are able to sing in such a way that it touches people, and you are able to connect to connect yourself and the people sitting behind you, and which is very important. That's why it's a sadhana which we have to work towards. तो फिर उन्होंने आधा घंटा भैरवी का आलाप कर करके सडनली स्टार्टेड जय पांडुरंगा प्रभो, वो भी ट्यून थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज it is based on rag, it's not based on the this. So all I'm trying to say is that we are very privileged to be a part of the Sai group, and as Sai singers, it is a responsibility. हमारी बहुत बड़ी responsibility है कि हम स्वामी की इस legacy को आगे बढ़ाएं जो स्वामी ने खुद start किया है, and for that it's very important to follow all the guidelines जो स्वामी ने guidelines दिए हैं, और जो खासियत है साई भजन्स की उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. तो एक और इंसिडेंट आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे बॉम्बे में एक अंकल है, उन्होंने बताया था, वन ऑफ द वेरी ओल्ड टाइम डिवोटीज, जैसे स्वामी ने बोला कि it seems there was an interview and uncle बैठे थे, लक्ष्मण चावला अंकल, वो बैठे थे, and Swami started talking about Rama avatar, Krishna avatar and everything. तो suddenly he turned around and he said, जब मैं राम बना था तो मेरे नहीं, जब भगवान नीचे अवतार लेके आते हैं तो अपने लोगों को साथ लेके आते हैं. He said. Then he said, जब राम आए तो उन्होंने अपने साथ वानरों को लेके आए. जब कृष्ण बने तो he brought his own team of people, you know, ये gopis and ये लोग सब. And then he looked at everybody and he pointed ऐसे, बोला ये सब मेरा टीम है. Okay, so we all are his team, and that's why it becomes a additional responsibility for us that we maintain this legacy and maintain this the guidelines on which Swami has told us to sing, and get ये सब जो छुटपुट बातें हैं, like she said, we are all on the same journey. कोई आगे है, कोई पीछे है. तो अगर कोई बहुत बड़ा गुड सिंगर है and he can sing, ऐसा नहीं है कि you know उसको कुछ स्पेशल प्लेस हेवन में मिलने वाला है, ऐसा नहीं है. If somebody is singing a very good कॉम्प्लिकेटेड भजन और अच्छी आवाज में गा रहा है तो उसको कुछ हेवन में अलग जगह मिलने वाली है, या फिर जो कोरस दे रहे हैं उनको अलग जगह मिलने, भगवान बोलने वाले कि तुम तो कोरस थे, तुम वहां you're on level 3. ऐसा नहीं है. Everybody is going to get the same benefit. It's only that the lead singers की ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to lead yourself towards connect with the God and to connect those people who are sitting behind you. तो जितने आप public singers हो, जितना the bigger the singer you are, the bigger your grade. It becomes like last time also I said, it's your responsibility to see to it कि हम जब गाएं तो पीछे जो लोग बैठे हैं उनको उनका कनेक्शन हो. We are just mediums. मीडियम है हमको our singing capabilities, yes, that does not mean that we should compromise on the singing कि हम तो वैसे ठीक है ना हम गा लेंगे, ऐसा नहीं है. अपनी तरफ से full like she said, like Tanvi said, whatever your riyaz, your tal, rag, tal, bhav, very very important, but most important is the connection. Only when you connect, you can connect the others. And this is the responsibility of the lead singers. So that is why the next few sessions I would like to interact with the lead singers also so that we can share whatever we feel. That's it. Saira.
Sairam Didi, very well spoken. And I must say the third part, which is the Nada Brahma, I think you have touched it, and we are going to really benefit from your experience in the coming future. Sairam. One more thing, just a minute. Yes. I forgot to say, just as no, the importance of the feeling Sai Bhajan में. Now there was one एक सीडी डबल सीडी एक 10 सीडीज की सीरीज निकाली थी जिसका नाम था नामस्मरणा सीरीज. ओके, क्योंकि क्या होता है कि हमको लगता है कि जब फेमस सिंगर्स गाएंगे यू नो तब लोगों को अच्छा लगेगा, दे विल वांट टू हियर. बट ऐसा नहीं है. साई भजन में साई भजन इज नॉट लाइक एनी अदर भजन कि हमने सुना गा लिया. उसमें जैसे तन्वी ने तब बोला, द भाव फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं आया तो पूरा भजन का कोई मतलब ही नहीं है. सो ये नामस्मरणा सीरीज के 10 कैसेट्स सीरीज बने थे. उसमें एवरीबडी यू नेम इट एंड दे वर सिंगिंग साई भजन. वो गा रहे थे साई भजन. our Shankar Mahadevan, ये श्रेया घोषाल, you name them and they were all there. And उनको first of all उनको सिखाना was a big task, क्योंकि उनको जम ही नहीं रहा था ये छोटी छोटी भजन्स में कैसे इतने न्यूएंसेस ला सकते हैं. वो सब फिर भी उन्होंने अपने स्टाइल से गाया, वो ठीक है. बट आफ्टर दैट द सीडीज वर नॉट गेटिंग सोल्ड, you know, because people were not finding it, they are not able to connect to it. Why? Rag tal perfect, voices beautiful, Shankar Mahadevan, Hariharan, I mean the topmost singers. But why were the CDs not getting sold? The CDs were not getting sold because there was no bhav in that. वो जो main factor है, वो जो feel एक साई devotee can get, they cannot get. तो फिर उन्होंने क्या किया? Actually, I'm telling you this because it's not something for me to be proud about, but all I'm trying to say is that that is the effect of the Sai Bhajans, so that it gets sold. Some few singers were, we went to, I had also gone to Pune. Pune में जाके उसका वो recording किया, and you won't believe it, I sang over somebody's voice. मैंने 2-3 गाने श्रेया घोषाल के आवाज के ऊपर मैंने अपना आवाज गाया. Can you believe it? And they started getting sold. Not only me, there were some other singers also, male singers भी थे. Why? Because वो feel नहीं आ रहा था. They said कि हम let us put a few singers, साई devotees, तो थोड़ा एक feel आ जाए. And उसके बाद उसका sale होने लगा कि कुछ तो गाने उसमें, something it has to touch somewhere, which is a very important factor which we have and which we need to work upon. That's it. Sairam. Yeah, I've also heard those series and very rightly said. And now, so we will learn everything about how we go about and how to connect. So since we are concluding this session for today, I would just request our president, Shri Mahesh Pavaskar, to just say a few words. Sairam. Mahesh bhai. Sairam. Sairam. हाँ. मैं 2 शब्द मराठी में कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्रामध्ये मराठी जास्त बोलतात. तर सर्व भजन कोऑर्डिनेटर, भजन सिंगर्स व स्पेशली उमाताई, तुम्हा सर्वांना माझा प्रेमपूर्वक साईराम. भजन साधना, आवर जर्नी टुवर्ड्स नाद ब्रह्म, खरोखरच हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. कारण साई समितीची सुरुवातच भजनातूनच होत असते. प्रोग्रामच्या ऐनवेळी आपण कधी कधी वर्कशॉप घेतो व त्यातून निवडक भजन सिंगर्स सिलेक्ट करतो. हे एक अवघड विषय आहे आणि या वेळेला आपण एक खूप पहिल्यांदा सुरुवात करायला पाहिजे असा विचार करून भजनाचे रूल रेग्युलेशन पटवून देणे, सिंगरचे मिसअंडरस्टँडिंग दूर करून त्यांचं भजन ही एक सेवा आहे हे सर्व पटवून देणे, हे एक मोठे चॅलेंज आहे आमच्या पुढे आता. तर स्वामी म्हणतात की यू टेक 1 स्टेप्स टुवर्ड्स मी, आय टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू. तर
आपण वर्कशॉप घेण्यासाठी जो प्रयत्न करीत आहोत त्याला बाबा अवश्य यश देतील. स्पेशली उमाताई एवढ्या उदार मनाने गोव्यासाठी वेळ देत आहेत ते पाहून मनात खूप आनंद होत आहे. आम्ही त्यांचा आभारी आहोत. आमचा प्रेमळ साईराम. आम्हा सर्वांना याच्यात भगवंताची खूप खूप कृपा प्राप्त हो अशी प्रार्थना करून माझे 2 शब्दांना पूर्णविराम देतो. साईराम, आम्ही सगळ्या मैं अंत में कुछ कहना चाहूंगा. कंक्लूड 2 शब्द. या ओके. तो आज की शुरुआत तो कितनी अच्छी तरह से हुई है. शायद ही हमें लगा होगा कि हम पढ़ती में नहीं है. विजुअलाइजेशन जब कर रहे थे तो मुझे तो लग रहा था कि मैं कुलवंत में ही बैठा हूँ और ये सब जो ध्यान करवाया गया कितने अच्छा तरीके से शुरुआत हुई है इस प्रोग्राम की कि हम सभी उसी मार्ग पे हैं और हर एक अपने अपने जगह पे हैं. तो अगर हम इस साधना को मतलब भजन एक साधना की तरह लें तो अगले 3 महीने का ये तप जो है तो शायद ही हमें थोड़ा सा आगे ले जाने में मदद जरूर करेगा. सौभाग्य हमारा है कि हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं इसको. टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना पड़ेगा, नहीं तो शायद ही हम कर पाते. शायद ही हमको उमा दीदी मुंबई से जुड़ पाती क्योंकि वो अगर आप बुलाते भी तो हम एक दिन के लिए आते और एक दिन के लिए उतना इफेक्ट नहीं होता. 3 महीने का तप जो हम करने वाले हैं तो मुझे तो जरूर ही लगता है कि हम एटलीस्ट 1 मील तो नहीं करीबन 1 सेंटीमीटर तो आगे जरूर बढ़ेंगे इस जर्नी में स्वामी की तरफ. तो हमारा जो कार्य है अभी ये रहेगा कि सभी जो गोवा के जुड़े. आज हमारा है कि कोई इसमें से मिस ना हो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी शायद ही हमें फिर से आए. तो हमारे टीम को मेरी यही प्रार्थना है कि हम ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करें हमारे सिंगर्स को कि अगले फ्राइडे से सब ज्वाइन हो जाए. धन्यवाद उमा दीदी, धन्यवाद तन्वी दीदी, सब इस प्रोग्राम के लिए. साईराम. साईराम. आम्ही एकूच सांगूंक सोदता की आम्ही एज भजन कोऑर्डिनेटर्स आता भजन कोऑर्डिनेटर्स आसा ब्रदर संदीप, मागीर सिस्टर रविना, रामदास काका आणि मायसेल्फ. आम्ही सगळी एक स्वामीची इन्स्ट्रुमेंट्स आसा जस्ट तुमच्या कडेन हे सगळे पावोवपाक. सो आमकां या प्रवासान आमकां सांबाळून घ्या. साईराम. Should we conclude the session? Conclude करूया. Yes. Yes. Okay. Yeah. So शांती घेऊन एक सोपूया. शांति शांति शांतिः. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय. Sairam. So Sairam, see you next week. Sairam. Yeah, Sairam. Sairam. तन्वी बेस्ट. बरी झाली. थँक्यू. बरी झाली मुगो. साईराम. तन्वी. हा बंद. साईराम. आता बंद करू. हा साईराम. हा साईराम. साईराम. तन्वी. हा कोण? संदीप. संदीप उलयता. हे ऑल गोवा सगळ्यांनी आयकल्यार बरें आसलें गो. रेकॉर्डिंग आसा संदीप. ऑल गोवा ते आता हो प्रोग्राम सगळ्यांकूच आसा. ना हे सगळ्या लोकांनी आयकले. हो प्रोग्राम जो आशिल्लो न्ही. हय हय करेक्ट. आणि ऍक्च्युअली कितें आसा म्हाका कळिल्लें की ऑलमोस्ट अराउंड 90 लोक 92 नांवां काय कितें आसा. पण आज सगळीं जाणां जॉइन जावना. हय कळ्ळें. सो कितें कशें आसा
की आमी अशें ठरयलें म्हणजे उमा दिदी कडेन हांव उलोवन सिन्स हे ऑनलायन सेशन आसा न्ही आमकां सगळ्यां कडेन तशें इंटरॅक्ट करूंक जावचें